नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ठहर। गुड़गांव के नाथूपुर डीएलएफ फेज 3 में मकान मालिक और स्थानीय लोगों द्वारा किराए पर रह रहे दार्जिलिंग के 3 लड़कों की पिटाई से नाराज गोरखा समुदाय के लोगों ने गुड़गांव में विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि सभी हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। गुड़गांव के नाथूपुर डीएलएफ फेज 3 में दार्जिलिंग के 3 लड़कों की जिस तरह से पिटाई की गई है, उससे पूरे गोरखा समुदाय में रोष बना हुआ है। इसके विरोध में बुधवार को दिल्ली एनसीआर में रहने वाले गोरखा समुदाय के लोग गुड़गांव की सड़कों पर उतर आए। इनकी मांग है कि सभी 20 हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। साथ ही इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया जाए। इस सिलसिले में प्रदर्शनकारियों ने गुड़गांव के नोडल ऑफिसर डीसीपी दीपक सहारण को एक मेमोरेंडम भी सौंपा है। वहीं सहारण ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जा रही है और मामले में जो भी आरोपी पाया जाता है उसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं उन्होंने मामले में नस्ल भेद की बात से साफ इनकार किया है। बता दें कि अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। Investigations are on and 5 persons have been arrested and other arrests will follow soon. We'll carry out the arrests as soon as possible, as soon as our investigations are completed. And regarding the racial discrimination, nothing so far has been came out in support of these allegations. But still we are probing whether this angle was involved or not. दिल्ली एनसीआर में पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा पर डीसीपी दीपक सहारण ने कहा है कि उनकी फोर्स लोगों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है और ऐसी घटना को रोकने के लिए वो सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। This is second such case which has cropped up during the recent time, and we have also formed peace committees, and we are holding meetings with the northeast people on regular basis, and care is taken that no such incidents are taking place due to lackadaisical attitude of some officer or some people. वहीं प्रदर्शन के आयोजक किरण बीके ने पूरे मामले की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं की वजह से वो अपने देश में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। See, this is not only case we faced. We are facing this type of cases very frequently here, and we are fighting for the to give to the end to this type of discrimination and this type of cases from last many years. But yet the administration and the system is not able to. They are not able to give it to the end, right? So now we are coming up with the many issues like we have mentioned in our memorandum also. There are many issues we have mentioned in the memorandum from the last time. We feel unsafe here. We feel like we are outside. Like we don't feel like we are in the same country. वहीं किरण ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव के चीफ विमल गुरुंग के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। बी का कहना है कि उन्हें गुरुंग से मदद और सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें जनता से जरूरी कुछ और लग रहा है। We want from our base, that is from our northeast, our state, that our politicians and our MPs, MLAs are there, right? But somewhere we see them, they are fighting for, they are struggling for name and fame only, not for the support of the public. We feel like that, you know. Statement of Vimal Gurung, today I got to see in the paper that he stated that the 5 are arrested and our MPs supported. My GJM branch of Delhi and GJM branch of Haryana is handling the case. But the fact is no branches of GJM and Haryana is there in Delhi and Gurgaon, but they are giving the statement like that, and they finished the case. They said ki 5 are arrested and my MPs and this thing supported, thank you for all, and they finished the case. But what we are fighting for is 5 are not the culprit. There are 20 or more to be arrested now. वहीं दूसरी तरफ मामले के 2 पीड़ितों अभिषेक राय और देव कुमार सुब्बा को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि तीसरा पीड़ित सागर राय अभी भी एम्स में भर्ती है। देव कुमार सुब्बा ने बताया है कि शनिवार की रात मामूली विवाद पर मकान मालिक और उनके बेटों से उनकी कुछ कहासुनी हो गई थी। इस पर हमलावरों ने उन पर नस्लीय टिप्पणी करते हुए उन्हें जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। तीनों ने जब उनका विरोध किया तो अचानक कुछ और लोग वहां आ धमके और उन्होंने लाठी और डंडे से उनकी बेरहमी से पिटाई कर डाली। प्लान करके आया होगा शायद, ज़्यादा मतलब एक गठा हुआ था, सब मिलके पता नहीं कहाँ का था, वो सब मिलके आके हम लोग का मारा है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि मामला पहले ही सुलझ गया था, लेकिन कुछ स्थानीय लोग फिर से उनके कमरे में आ गए और उनकी पिटाई शुरू कर दी। तीनों को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि पूरे कमरे में खून के निशान दिखाई दे रहे थे। पीड़ितों ने आरोपियों पर सबूत मिटाने के आरोप भी लगाए हैं। अभिषेक का कहना है कि इस तरह की जातीय हिंसा बंद हो ताकि आने वाली पीढ़ी को नस्लवाद का सामना न करना पड़े। ऐसे चलता रहेगा तो हमारा देश तो और गिरते रहेगा।
क्योंकि हम लोग भी यही देश का है, मगर हम लोग को नेपाली समझ के ऐसे ऐसे गाली भी देता है। अब जिस पल हमने भोग रहे हैं वो हमारे भाई बहन भी बाद में आके पढ़ाई करने वाला जो स्टूडेंट होता है, जो नौकरी करने होते हैं, उसके साथ ये सब नहीं होना चाहिए, यही बोलना चाहता हूँ। तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, क्योंकि इतना जानवर की तरफ से मारता है आदमी को। कैपिटल कॉम्प्लेक्स के सेशन कोर्ट ने प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कालिको पुल को राहत देते हुए उनके पार्टी से निष्कासन वाले फैसले पर रोक लगा दी थी। इस फैसले पर अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कालिको पुल पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जहां एक तरफ 13 मई को कैपिटल कॉम्प्लेक्स के सेशन कोर्ट ने प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कालिको पुल को बड़ी राहत दी थी, वहीं इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाकर सरकार को भी बड़ा झटका दिया था। सेशन कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी करते हुए पुल के निष्कासन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट की तरफ से अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पादी रिचू को नोटिस जारी किया गया था। इस फैसले पर पादी रिचू ने कालिको पुल पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। रिचू का कहना है कि अगर कालिको पुल सोचते हैं कि वो पार्टी के अनुशासित सदस्य हैं, तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी। वहीं पुल द्वारा पार्टी पर लगाए जा रहे आरोपों पर रिचू ने सफाई देते हुए कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में प्रावधान है कि अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसी सदस्य को किसी मामले में दोषी पाते हैं तो वो सदस्य को निष्कासित कर सकते हैं। बता दें कि कालिको पुल ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। वहीं पादी रिचो ने पुल के इस आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि पुल ने पार्टी के खिलाफ जाकर कांग्रेस के संविधान का उल्लंघन किया है। बता दें कि कालिको पुल ने राज्य में कांग्रेस सरकार के खिलाफ वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाए थे, जिसके बाद 2 अप्रैल 2015 को कालिको पुल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। दोईमुख के कम्युनिटी हॉल में मंगलवार को प्रस्तावित अरुणाचल ट्रांस हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर बैठक का आयोजन किया गया। यह हाईवे ईटानगर से जोते और दोईमुख से गुम्तो तक बनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में बनने जा रहे ट्रांस हाईवे के लिए कई मुश्किलें उभर कर सामने आ रही हैं। परेशानियों का समाधान निकालने और भूमि अधिग्रहण पर चर्चा के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायती राज के सदस्यों से लेकर गांव बुराज, छात्र संघ, गैर सरकारी संगठन और आम जनता ने हिस्सा लिया था। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे अरुणाचल विधानसभा अध्यक्ष नाबम रेबिया ने कहा कि बिना आम जनता के सहयोग के राज्य का विकास मुमकिन नहीं है और न ही किसी भी विकासात्मक गतिविधि को पूरा किया जा सकता है। इसलिए राज्य सरकार को आम जनता के सहयोग की जरूरत है। रेबिया ने बताया है कि अरुणाचल ट्रांस हाईवे के निर्माण में सबसे बड़ी मुश्किल आम जनता ही खड़ी कर रही है, क्योंकि कभी कोई जमीन देने में आनाकानी करता है तो कभी भूमि मुआवजे को लेकर परेशानियां आ रही हैं। इस दौरान रेबिया ने लोगों को ये भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और फंड के सैंक्शन होते ही सभी विकासात्मक गतिविधियों को पूरा किया जाएगा। जो खुद बोलता है ये नेता लोग काम नहीं करता, रास्ता क्यों नहीं बना रहा, तो जब रास्ता बनाने की बात आता है, हॉस्पिटल बनाने का बात आता है, स्कूल बनाने का बात आता है, तो बोलना है कॉम्पेंसेशन, इसके बिना होगा नहीं। ये गवर्नमेंट का कंडीशन एक ये है, लैंड जो है गुम्तो से बागेती नाली रास्ता तो ऑलरेडी रास्ता है, वहाँ कोई नया अलाइनमेंट रास्ता तो हम लोग नहीं बनाएगा, उसी रास्ता से जाना है, केवल थोड़ा चौड़ाई बढ़ेगा, वाइडनिंग करना है। चिंपू से जोते रास्ता ऑलरेडी है, उसको थोड़ा वाइडनिंग करना है। घूमतो तू बागेती नाली दोईमुख बाजार होके जाएगा और सर्वे हम मुलेसोल फाइनल में तो सर्वे कल परसों से शुरू होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या कहीं से जैसा फंड आएगा काम शुरू होगा। त्रिपुरा में तेल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। सीपीआईएम यूथ फ्रंट के नेतृत्व में छात्र और युवा संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोल के बड़े दामों ने त्रिपुरा के लोगों में इस कदर गुस्सा भर दिया है कि वो सड़कों पर उतर आए हैं। सीपीआईएम यूथ फ्रंट के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान आवाजाही पूरी तरह से ठप रही और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाथों में बैनर लिए और नारे लगाते ये लोग केंद्र सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। DYFI के अध्यक्ष पंकज घोष का कहना है कि पेट्रोल के बड़े दामों ने लोगों की जेब पर खासा असर डाला है और अब लोगों के पास सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। घोष ने जानकारी दी कि पूरे राज्य में करीब 150 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर मोदी सरकार ने तेल की कीमतें नहीं घटाई तो उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि पिछले शुक्रवार को पेट्रोल की कीमतों में 3.13 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए का इजाफा किया गया था। গত 15 দিনে আমাদের দেশের মধ্যে পেট্রোল ডিজেল সব পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। এই ঘটনাকে সামনে রেখে আমাদের গোটা দেশের মধ্যে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন রাস্তায় নেমে লড়াই আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করছে। এই ধরনের কর্মসূচিকে সামনে রেখে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে 10টি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন গোটা রাজ্যের মধ্যে ধর্মনগর থেকে সাবরুম কি পাহাড় কি সমতলে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় 150টার মতন এই কর্মসূচি আমরা সংগঠিত করছি। চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি 10টা থেকে 10টা 15 এই 15 মিনিটের জন্য চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি আমরা সংগঠিত করবার জন্য আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের 10টি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।